نیو آسانی سان کھارنے تلیو تیز فوٹو توئی کم RBI چھُ ونان پونسٕچ سمجھدار چھ خوشحال زنان ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا سکاسٹ جموں کے بابا جتو آڈیٹوریم میں آریہ مہا سمیلن سے خطاب، سماج کو دہشت گردی اور منشیات سے پاک بنانے میں انتظامیہ کی مدد کرنے کی عوام سے کی اپیل۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کی قیادت میں محکمہ اسکولی تعلیم میں تدریسی سرگرمیوں کے علاوہ دیگر تعلیمی اصلاحات کی عمل آوری کا لیا گیا جائزہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں میں سنسکرت پڑھانے کے اخباری بیان کو کیا رد، کہا اس طرح کا کوئی بھی مسودہ سرکار کے زیر غور نہیں۔ اور جموں کشمیر پولیس کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر CIK کی طرف سے کشمیر وادی کے 10 اضلاع میں تلاشی کارروائیاں انجام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سکاسٹ جموں کے بابا جتو آڈیٹوریم میں آریہ مہا سمیلن سے خطاب کیا۔ 2 روزہ مہا سمیلن آریہ پرتیندھی سبھا جموں کشمیر نے مہارشی دیانند سرسوتی کے 200ویں جنم دن اور آریہ سماج کی 150ویں سالگرہ منانے کے موقع پر کیا ہے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے فوج، پولیس اور نیم فوجی دستوں کے ان اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے جموں کشمیر میں دہشت گردی کو ختم کرنے میں اپنی جانوں کو نچھاور کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جہاں پولیس اور انتظامیہ جموں کشمیر میں امن اور ترقی کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہیں کچھ عناصر TRF کی زبان بول رہے ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ سماج کو دہشت گردی اور منشیات سے پاک بنانے میں انتظامیہ کی مدد کریں۔ دیہی علاقوں میں طبی نگہداشت کی خدمات مستحکم کرنے کے حصے کے طور پر صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج DH پورہ کے کھل گاؤں میں نیو ٹرائی پرائمری ہیلتھ سینٹر اور شیپ ایکسٹینشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ یہ صحت مرکز 1 کروڑ 88 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے، جس سے کھل اور ملحقہ علاقوں کی وسیع آبادی کو صحت سہولیات میسر ہوں گی۔ اس موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوفہ نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کی مجموعی ترقی کی وعدہ بند ہے اور خصوصی توجہ دور دراز علاقوں پر مرکوز ہے۔ بعد میں انہوں نے مختلف عوامی وفود سے بات چیت کی۔ جنگلات اور ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج مغل روڈ پر سیاحوں کی سہولیات کے لیے مختلف پہلوؤں کا جنگلات محکمے کے ساتھ جائزہ لیا۔ پیر کی گلی کے دورے کے دوران انہوں نے ماحولیات کو متاثر کیے بغیر بنیادی ڈھانچے جیسے فارسٹ ہٹ تعمیر کرنے، سڑک کے کنارے ویو پوائنٹس اور دیگر سہولیات کے بارے میں اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے علاقے میں سبزہ زاروں کے مناسب اور پائیدار استعمال پر بھی زور دیا۔ پائیدار ترقی کو ترجیح دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ موجودہ سرکار کا مقصد اقتصادی ترقی کو ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ متوازن کرنا ہے، جس سے کشمیر کے ماحولیاتی نظام اور یہاں کی آبادی کے بہتر مستقبل کو یقینی بنایا جا سکے۔ سری نگر میں آج چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کی قیادت میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران محکمہ اسکولی تعلیم میں تدریسی سرگرمیوں کے علاوہ دیگر تعلیمی اصلاحات کی عمل آوری کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں محکمے کے سیکرٹری اور سینئر افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے اساتذہ کے رول کو سراہتے ہوئے کہا کہ اساتذہ کی لگن اور تخلیقی صلاحیتوں کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ جموں کشمیر میں 396 اسکولوں کو PM شری پروگرام کے تحت منتخب کیا گیا ہے۔ دری اسنا چیف سیکرٹری نے بانڈی پورہ میں ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیتے ہوئے سرکاری اسکیموں کی صورتحال سے متعلق ایک میٹنگ میں آگاہی حاصل کی۔ میٹنگ میں ضلع ترقیاتی کمشنر منظور احمد قادری بھی موجود تھے۔ چیف سیکرٹری نے عوامی نمائندوں اور وفود سے بھی بات چیت کی اور ضلع میں کئی تکمیل شدہ پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کیا، جن میں صحت، دیہی ترقی اور عوامی بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹ شامل ہیں۔ جموں کشمیر محکمہ اسکولی تعلیم نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ مرکزی سرکار کشمیر کے اسکولوں میں کلاس 6 سے 10ویں تک سنسکرت متعارف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق مذکورہ خبر ایک انگریزی اخبار نے شائع کی ہے، جس میں اس طرح کا دعویٰ کیا گیا تھا جو بالکل غلط ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ محکمے نے بتایا کہ لیفٹیننٹ گورنر کے سیکریٹریٹ کو ایک رضاکار تنظیم کے پرشوتم لال دوبے کی طرف سے ایک مسودہ دیا گیا، جس میں نئی ایجوکیشن پالیسی کے تحت جموں کشمیر میں سنسکرت کو بھی اسکولوں اور کالجوں میں متعارف کرنے کی بات کہی گئی تھی، اور اس کے بعد LG سیکریٹریٹ نے اسکولی اور اعلیٰ تعلیم کے محکموں کو اس بارے میں مطلع کیا۔ تاہم ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی پالیسی ترتیب دینے کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی نے آج تیل بل میں
12 सादा दरगाह पर हाजिरी दी और वक्फ बोर्ड की तरफ से शुरू किए जाने वाले अपग्रेडेशन के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उन्होंने मंसूबों के बारे में सिविल सोसाइटी के मेंबरान से बातचीत की और दरगाह पर बुनियादी ढांचे की तरक्की के हवाले से मकामी लोगों की तजावीज़ सुनी। वक्फ चेयरपर्सन ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर शुरू करें ताकि हस्ब जरूरत काम मुकम्मल हो सकें। उन्होंने वक्फ बोर्ड के उस अज़्म का भी इआदा किया कि जम्मू कश्मीर में सूफी रूहानी मीरास को जिंदा और महफूज रखने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK ने आज कश्मीर वादी के 10 अजला में तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। CIK हुकाम ने कहा कि दहशतगर्द स्लीपर सेल की दहशतगर्द जराइम की तहकीकात के मामले में तलाशी ली जा रही है और सरहद पार से जैश ए मोहम्मद तंजीम के बैंड कमांडर अब्दुल्ला गाजी की भर्ती के मॉड्यूल की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में 1 मकाम, वस्ती कश्मीर गांदरबल जिले के 6 मकामात, श्रीनगर में 1 और जिला बडगाम में 2 मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। हुक्काम ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान कुछ सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन जब्त किए गए और मजीद तहकीकात और छानबीन का सिलसिला जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टेक कंपनियों गूगल और मेटा को ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामलात के सिलसिले में नोटिस जारी किए हैं। जराये ने बताया कि EDA ने पीर के रोज दिल्ली के अपने हेडक्वार्टर में दोनों कंपनियों के नुमाइंदों को पेश होने के लिए कहा है। मज़कूर एजेंसी इन ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स के फरोग में डिजिटल प्लेटफॉर्म के रोल की जांच कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज थी धारवन के A और B हलकों में तामीर और तरक्की के हवाले से जानकारी हासिल की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम और ब्लॉक सदूर भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान मकामी लोगों ने कई मसाइल उभारे और उनके इजाले का मुतालबा किया। अली मोहम्मद सागर ने मौके पर ही तरक्याती कामों के लिए रकूमात मुख्तस करने का ऐलान किया। उन्होंने पानी की फराहमी, अस्पताल को अल्ट्रासाउंड मशीन और एम्बुलेंस के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपए, जबकि मकामी स्कूलों की तजदीद के लिए 50 लाख रुपए की फराहमी का ऐलान किया। MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज एक मीटिंग के दौरान ब्लॉक वायलू में तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मीटिंग में सब डिविजनल अफसरों और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान MLA मौसूफ ने हुक्काम से ताकीद की कि वो इन तमाम तरक्याती प्रोजेक्टों की तामीर में मियार का खास ख्याल रखते हुए इनको मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें ताकि इन प्रोजेक्टों का फायदा अवाम को पहुंचे। बाद में MLA मौसूफ ने हरदशोरा रोड प्रोजेक्ट पर मैकडम बिछाने के काम का इफ्तिताह किया और इस काम पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। MLA कुलगाम MY तारिगामी ने आज डाक बंगला चवलगाम कुलगाम में मुख्तलिफ महकमों की एक मीटिंग तलब की, जिसमें बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए कई जानकारी प्रोग्राम चलाने की बात कही गई। मेंबर मौसूफ ने डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज से कहा कि वह महकमे में ज्यादा से ज्यादा रोजगार कमाने वाली स्कीमों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम शुरू करें और इसके अलावा महकमे एनिमल हस्बेंड्री के ओहदेदारों से भी ताकीद की कि वो पशुओं की टीकाकारी के प्रोग्राम को अपनाने के लिए घर घर जाएं। मीटिंग में DDCA चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल परे और कई दीगर जिला हुक्काम भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर और MLA हब्बा कदल शमीमा फिरदौस ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार अवाम को हर सतह पर राहत पहुंचाने की वादाबंद है। वो आज गदूद बाग हब्बा कदल में अमृत स्कीम 2 के तहत पीने के पानी के पाइप बिछाने के काम का इफ्तिताह करने के दौरान वहां मौजूद लोगों से बात कर रही थी। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से 2175 नफूस को पीने का साफ पानी मुहैया होगा। इसी दौरान पार्टी के जिला सदर पीर आफाक अहमद की सदारत में मुनाकिद इजलास के दौरान जिला श्रीनगर के पार्टी अमूरात और तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज कुपवाड़ा में कई अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने तमाम वफूद को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल हुक्काम की नोटिस में लाएंगे और इजाले के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि उनकी पार्टी को एहतजाजी मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी गई। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा फराहम करने के बारे में डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करने का एक प्रोग्राम बनाया था। श्रीनगर में आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब ने कॉर्पोरेशन के तमाम महकमों के सीनियर अफसरान के साथ एक मीटिंग की, जिसमें कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लेने के साथ साथ खिदमत की फराहमी और बुनियादी ढांचे की देखभाल पर तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने तमाम महकमों को वक्त की पाबंदी के साथ काम करने की जरूरत पर जोर दिया। कमिश्नर मौसूफ ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो शिकायत के इजाले के तरीक़ेकार को मुस्तहकम करें।
कृषि विज्ञान केंद्र अनंतनाग की तरफ से आज 12वें साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने की। मीटिंग के दौरान केवी के अनंतनाग की कारकर्दगी, हुसूलियाबियों और मुस्तकबिल के प्रोजेक्टों के हवाले से तफसीली तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में स्कॉस्ट कश्मीर की डायरेक्ट एक्सटेंशन, दीगर साइंसदान और ओहदेदारों ने शिरकत करते हुए जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का ज़रूरी सरगर्मी में इस्तेमाल पर रोशनी डाली। अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों कुकरनाग, वाइल, डक्सम और गडूल में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कदगन लगाने के लिए मोटर व्हीकल्स महकमे की कार्रवाई के दौरान 140 से ज्यादा गाड़ियों का चालान किया गया। ARTO अनंतनाग मुबशर जान के मुताबिक इस मुहिम का मकसद उन ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाना है जो तेज रफ्तारी और सही ढंग से गाड़ी न चलाने के मुर्तकिब पाए जाएंगे। बारामूला के डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी कैंपस में आज महकमे पशुपालन की तरफ से एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मौजू एक सेहत, एक मुस्तकबिल, ज़ोनोटिक वबा से निजात हासिल करना। चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर बारामूला और चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला की मुश्तरका कोशिशों से इस वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर डॉक्टर परविंदर सिंह सोधन ने किया। इस मौके पर बताया गया कि ज़ोनोटिक और रैबीज बीमारी से बचाव के लिए सेहत और दीगर महकमों को मुस्बत कोशिशें करना होंगी ताकि इंसानों और जानवरों की सेहत बरकरार रह सके। प्रोग्राम के दौरान 184 अफराद को एंटी रैबीज वैक्सीनेशन दी गई। ऑल कश्मीर एम्प्लॉय ज्वाइंट एसोसिएशन और ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से आज मनशियात की बिद्दत के खिलाफ एक वॉकथन का इनेकाद किया गया। वॉकथन तवारीखी घंटाघर से शुरू होकर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बट्टपालू में इख्तिताम पजीर हुआ। वॉकथन को SSP ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद ने रवाना किया। इस मौके पर तलबा, स्कूली महकमे के कई ओहदेदार और एम्प्लॉयज यूनियनों के नुमाइंदे, असातिज़ा और रजाकार भी मौजूद थे। वॉकथन में शामिल शुर्रका ने वादी में नौजवानों में मनशियात की बढ़ती बिद्दत पर तशवीश का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि मनशियात पर काबू पाने के लिए समाज के हर फर्द को मिलकर काम करने की जरूरत है। बांडीपोरा के एक होनहार मुदर्रिसा उल्फत नजीर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम केमिस्ट्री में काबिल कद्र खिदमात के एवज काफी शोहरत हासिल की है। आर्मी गुडविल स्कूल आरागाम में बहैसियत टीचर वो तलबा में न सिर्फ तदरीसी बल्कि साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए अपनी अनथक कोशिशें जारी रखे हुई हैं। उनकी तहरीर करदा AI इन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री नामी किताब तलबा और तहकीक में दिलचस्पी लेने वालों के लिए काफी सूदमंद है। मकामी माहिरीन तालीम, स्कॉलरों और दानिश्वरों ने उनके काम को सराहते हुए इसे नौजवानों, खासतौर पर खवातीन के लिए एक मशअले राह करार दिया। मेरी जर्नी रही है किताब की लास्ट 1 ईयर से। मैंने स्टार्टअप किया था फरवरी 2024 में ये किताब लिखने के लिए। उसके बाद मैंने पब्लिशिंग बुक से स्पॉट किया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था राजस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद मार्च में मेरा इंटरव्यू हुआ था और प्रूफ रीडिंग के लिए भी मेरा इंटरव्यू हुआ था ऑनलाइन। उसके बाद मेरा सिलेक्शन लिस्ट आया था एज ऑथर। तो इन सैटरडे मेरी ये जो बुक है वो पब्लिश हो गई इन बुक्स फॉर पब्लिकेशन, AI इन क्वांटम मैकेनिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सोपोर में आज बज़्म में शेर अदब और कश्मीर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के इश्तराक से एक अदबी मजलिस का इनेकाद किया गया। मजलिस का आगाज तिलावती कलाम पाक से किया गया। पहली निशस्त नसरी अदब और दूसरी निशस्त में एक मुशायरा मुनाकिद हुआ। महफिल की सदारत फयाज तिलगामी ने की। महफिल के इख्तिताम पर कश्मीर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के MD फयाज अहमद ने मुअज़्ज़ज़ उद्दबा का शुक्रिया अदा किया। फिक्शन राइटर्स गिल्ड की तरफ से आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब मरहूम अख्तर मोहिउद्दीन की याद में मुनाकिद की गई। इस मौके पर मोहिउद्दीन रेशी और देबा नजीर की 2 मुख्तसर कहानियां भी पढ़ी गई और उनकी सराहना की गई। आखिर में फिक्शन राइटर्स गिल्ड के जनरल सेक्रेटरी नासिर जमीर ने शुर्रका का शुक्रिया अदा किया। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में कायम इंडोर स्टेडियम में आज असिमता पंचायत स्लॉट लीग 2025 शुरू हुई। एक लीग का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल ने किया और इवेंट 3 दिन तक जारी रहेगा। इवेंट का इनेकाद खेलो इंडिया मुहिम के तहत पंचायत स्लॉट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की तरफ से किया गया है और इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए हुए जायद अज 500 एथलीट शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफा ने कहा कि एक खुश आइंद कदम है कि पैनचैक स्लैट में खवातीन की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही हैं और इस खेल को पूरे मुल्क में फरोग मिल रहा है।
اس میں ڈفرینٹ طریقے کی لیگس کرائی جاتی ہے ڈفرینٹ اسپورٹس میں. اس بار وی ہیڈ ریٹن ٹو گورنمنٹ آف انڈیا ٹو آرگنائز ویریس لیگس. ابھی یہ شروعات ہماری پنچک سلاٹ سے ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ کہ کبڈی ادر مارشل آرٹس میں بھی ہم یہ لیگس کا انعقاد یہاں کریں گے. یہ ایک ایسا پوڈیم سپورٹ ہے جو ویمن سینٹرک ہے. اس میں ویمن ٹیلنٹ جو ہوتا ہے گراس روٹ سے ابھر کے نیشنل لیول پوڈیم تک ہم کیسے لے جائیں، اس پورے ورٹیکل کی یہی کور اسٹرینگتھ ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.